Yes, student. We will do questions from 6.3 exercise. Similar triangles. You know the similarity conditions. We have completed question number 1. I will come to question number 2. Can you see here? So we require here. These are quite simple questions. This is easy. 5 more. This angle is 125. This angle is 70. It is one triangle OB similar to triangle OB, OBC, ODA. You know can similar. You are this triangular. You are the plane entity. How much? And how much? These three things we have to find. These two triangles are their side ratio, their angle must be equal. This angle must be equal to this, so the angle is equal to this. This angle also becomes equal. You can find out this angle also, this angle minus 70. How much? 65. This angle 55 also. This angle is also 55. DOC is also DOC. Then find out 125 and the angle कितने होगा? Angle DOC बोलो. Please tell angle DOC. 55. 85. 55. 180 minus 125. 55. So DOC होगा 55. What is DCO? DCO तो मैंने बता दिया आपको 55 होगा. और ये भी 55 होगा. OAB. This angle is also. I think these three angles all are of 55 degree. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Oh, very simple question. This is a question of belongs to 7th standard. I am coming to question number 3. You people can do this question very easily. No problem. I am coming to question 3. I will ask this question from you people. This is a trapezium. Trapezium, one opposite side parallel, AB parallel to DC. The diagonal intersect each other at O. Using the similarity criteria for these, show that OA upon OC must be equal to OB upon OD. You have to prove this. OA upon OC, OAOC, OBOD. And see, these two lines are parallel. Anyone can tell? इसमें दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा. एक ट्राइंगल OAB एंड OCD. आप इसको देखिए, ऐसे लिखिए इसको. You can write this is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4. देखो सिमिलरिटी के क्वेश्चन कैसे मैं लिख सकता हूँ. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. व्हाट इज दिस? These are
alternate angles. Alternate angles. Am I right? Alternate angles. Alternate angle. This implies what? By double A criteria. Triangle OAB similar to triangle OCD by AA similarity. How I am writing? Please see. By A similarity criteria. This implies, अब इनका साइड का देखो, OA अपॉन OC इज इक्वल टू AB अपॉन CD. वो मेरे को चाहिए ही नहीं. लास्ट वाला होगा OB अपॉन OD. सो हैंड्स प्रूव. यही प्रूव करना था सीधा का सीधा. और ये क्वेश्चन हमने बेसिक प्रोपोजिशन थ्योरम में भी किया था. वहां पे हमने यहां से पैरेलल लाइन खींची थी. बट आप सिमिलरिटी कंडीशन करके इसको डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना. ये सेम का सेम क्वेश्चन पहली वाली एक्सरसाइज में भी था. O upon OC is equal to OB upon OD. Please note down. Noted, sir. This is question number 3. I repeat this question. Yes, okay, noted. Question number 4. I am making the figure of this question. PQR. P I take here. And PS I will take. और P से इस R को मिला देता हूँ, PQR. This angle I am taking 1. This angle I am taking 2. And it is given QR upon QS is equal to QT upon PR. And angle 1 is equal to angle 2. It is also given. We have to show triangle PQS similar to triangle TQR. I have noted all the things what is given or what we have to prove. We have to prove PQS similar to TQR. ये दोनों ट्राइंगल, ये और ये सिमिलर. इसमें एक एंगल तो कॉमन है, ये तो मालूम हो गया कॉमन एंगल 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 1 है. दोनों में 1 1 है, तो एक एंगल तो कॉमन हो जाएगा. उससे तो हमें कोई वो नहीं कह सकता. दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है. Am I right? एक एंगल आपको इक्वल और प्रूव करना है, कोई सा भी. अच्छा, इसमें एक चीज और भी दे रखी है, देखो. QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR दे दिया. अगर ये PQ होता तो दोनों ट्राइंगल वो की वो बन जाते. कैसे? देखो, PQ हो जाएगा. देखो, एंगल 1 इक्वल टू 2, इससे क्या प्रूव होगा? दिस एम्प्लाइज, पहले इसे प्रूव कर लो. एंगल 1 इक्वल टू 2, PQ इक्वल टू PR. एम आई राइट? PQ इक्वल टू PR होगा ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल. अरे समझ में आया ना? Yes, sir. साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, PQ इक्वल टू PR. अच्छा, दूसरा PQ इक्वल टू PR है. मेरे पास ये जो गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR. मैं इस PR की जगह क्या लिख सकता हूं? PQ लिख सकता हूं, क्योंकि PQ इज इक्वल टू PR. तो इन दिस 1 and 2, this implies what? QR upon QS is equal to QT upon PR की जगह क्या लिख दिया बेटे? PQ लिख दिया. PQ लिख दिया इस PR की जगह.
राइट। और एंगल 1 = एंगल 1। ध्यान रहे ये एंगल 1 दोनों में है, कौन सी ट्राइंगल में? PQS और TQR। दिस एम्प्लाइज व्हाट? ट्राइंगल PQS मस्ट बी सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। कौन सी कंडीशन से सिमिलर होगी? SAS। ऐसे ऐसे किससे होगी? ऐसे ऐसे। कैसे होगी ऐसे ऐसे? देखो भाई, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, और ये एंगल क्या है बेटे? बीच का, ये इक्वल है। तो दो साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल सिमिलर होगी बाय SAS कंडीशन। एनीवन हैव प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड सर दिस वन? हाँ सर, अगर दो साइड का रेशियो बराबर होगा और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा तो सिमिलर होंगे। लेकिन अगर दो साइड का रेशियो बराबर है लेकिन उसके साइड वाला एंगल बराबर है तो फिर होंगे। सिमिलर नहीं होगा, फिर सिमिलर नहीं होगा। उसका इंक्लूडेड एंगल ही इक्वल होना चाहिए, उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। ओके सर। उसका बीच का एंगल ही इक्वल होना चाहिए। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। All of you noted this question? I rub it. Yes, sir. I am doing question number 5 now. S and T are the points on PR and QR of triangle PQR. ये ट्राइंगल है PQR, इसमें S and T are the points on ये S और ये T, and angle P, this angle must be equal to angle RPS। इसको मिला दो, ये एंगल के बराबर है। थ्रू दैट ट्राइंगल RPQ similar to triangle RPS. Please see and give the answer to me. These two angles equal. Angle P must be equal to angle RPS। ये दोनों एंगल इक्वल है, और आपको ये दोनों ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? RPQ और RPS, ये सिमिलर। नहीं, आप नहीं बताओगे साधना। I want to ask some other one. Vinisha, are you in the class? Yes, sir. बेटे बताओ जरा, ये ट्राइंगल देखो, ये वाली, दिस ट्राइंगल और ये मोटी वाली, ये बीच, ये छोटी ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर है। क्यों है? जबकि ये दोनों एंगल इक्वल है। Yes, sir. हाँ Sir, विनीश, हाँ TS बाइसेक्ट कर रही है क्या? है, सर, QR को T पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है क्या? T पॉइंट क्या कर रहा है? T पॉइंट मिड पॉइंट है क्या? नहीं नहीं है। नहीं। इप्सिता दास, Yes, sir. कैन यू टेल? सर Yeah. वो एंगल सर इसमें थोड़ा वो देखना पड़ेगा साइड्स का। सर इसमें
साइड का कोई इश्यू नहीं है। दैट आई एम टेलिंग। सर कैन आई टेल? नो साधना, नो। सर मैं बताऊं? हिमांशु, यस। सर आरपी इज इक्वल टू आरटी हो जाएगी सिमिलर से। है सर आरपी जो है ना, आरपी। हाँ आरपी क्या है? ये साइड। यस सर। और सर इसका रेशियो आरपी और आरटी का। रेशो का कोई इशू नहीं है, मैंने बता दिया। इसने रेशो का तो कोई इशू दिया ही नहीं है, तो रेशो का तो इशू लगा ही नहीं सकते आप कहीं पर भी। रेशो का तो इशू नहीं लगा सकते। मैंने पहले ही कह दिया था इप्सिता के केस में कि रेशो का इशू नहीं है इसमें। एनी अदर वन? एनी अदर सर वन? मैं नहीं, साधना के अलावा? सर कुशाग्र, यस। सर ट्रायंगल आरपीक्यू और ट्रायंगल आरटीएस में एंगल आरटीएस और एंगल ये तो चलो इक्वल यूपीएस लिख दोनों दिया, इक्वल होंगे वो तो इक्वल। और एंगल आर इक्वल टू एंगल आर होगा, वो कॉमन एंगल। अरे भाई आपको दिख नहीं रहा, ये एंगल कॉमन है दोनों में। हाँ Yes, भाई sir. सर, फिर बाद में और इसमें भी आ रहा है, आर बड़े ए- इसमें भी आ ए- रहा है, कॉमन एंगल है। सर ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल वो हो जाएगा एंगल सिमिलर। आर, आर आपने सही किया बेटा, यू आर गिवन ए करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आर इज इक्वल टू आर, दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाई ए सिमिलरिटी कंडीशन। वेरी सिंपल। अरे एक एंगल तो इक्वल दे ही रखा है, केवल एक एंगल उसमें कॉमन आ रहा है, दिख रहा है हमको कॉमन है वो, आप उसको ही Yes. बोलना लिखना है और ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा था ना, जब मैं इस सिमिलरिटी कंडीशन को बता रहा था आपको, कि ज्यादातर ट्राइंगल्स में यही सिमिलरिटी कंडीशन लगती है, राइट? बहुत सारी इसमें यही है, एक आपको सिमिलरिटी कंडीशन लगती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज नोट डाउन। noted sir. अदोप समझ में आया बेटा? I am coming to question number 6 now. Very simple question. फिगर के अंदर घुसिए, आप फिगर को देखिए, फिगर को समझिए। विनीशा, यस सर। क्यों नहीं हुआ बेटा ये क्वेश्चन? वेरी सिंपल इट इज। सर एकदम से ऑब्जर्व नहीं हुआ। ओके, मैं दूसरा पूछूंगा फिर। आप बी रेडी। यस सर। आई एम मेकिंग ए फिगर ए बी सी डी। At this figure, triangle ABE, ये triangle ABE similar to ACD, इस ट्राइंगल के सिमिलर दिए हुए। These two triangles are similar. Show that triangle ADE similar to triangle AB. ये ABD और ABC similar. Yes, find out the answer. ADE और ABC को सिमिलर प्रूव करना है, और ये दोनों सिमिलर दी हुई है। यस सर। सर मैं बताऊं? एनीवन? सर हु? विनीशा? चलो यस थोड़ी देर रुक जाओ, 1 मिनट, औरों को भी निकाल लो। एनी अदर वन? मानवी जैन, आर यू इन द क्लास? मानवी, Yes, sir. आपको समझ में आया कुछ?
नो। मानवी, Sir, I'm trying. मनाली, मनाली कहाँ गई आज? यस सर। कुछ समझ में आया? सर यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। सर इसमें भी एंगल ए कॉमन है तो ये ए क्राइटेरिया से हो जाएगा। एक ही तो है एंगल, दूसरा एंगल कौन सा इक्वल करोगे? सर यस सर, मेरे को आ गया। सर मैं बताऊं? सर ए बी इक्वल टू नहीं। AC क्योंकि ए बी हैं? सर कॉमन है। सर कौन सा? हाँ, ए तो सही है, ए आपने बोला इक्वल है, मान लिया। यस, आई नोटेड। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। सर हाँ, सर मैं सर बताऊं? ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए AB और AC इक्वल होंगे CPCT से। कॉन्ग्रुएंट नहीं है और- बेटा, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। अच्छा हाँ, मतलब वही सिमिलर। सिमिलर है, डोंट से कॉन्ग्रुएंट। विनीशा, व्हाट यू वांट टू से बेटा? यस सर। हाँ, बोलो। सर AE AD के इक्वल हो जाएगी। क्यों? वो ऊपर सिमिलर दे रखा है ना आपने। सिमिलर में ट्राइंगल की साइड इक्वल नहीं होती माय डियर। बट सर नो बेटा, नो। सर AD BD के इक्वल होगा। है? AD BD के इक्वल हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे तो कैसे? परपेंडिकुलर जा रही है ना। नहीं 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 नहीं, नो, डोंट से लाइक दिस, नो नो। हाँ, मानवी जैन, यस, यू वांट टू से समथिंग? सर हाँ, सर Ishita, क्वेश्चन में तो दिया है Ishita, you are ट्रायंगल not ABE coming anywhere. टू ट्रायंगल ACD। हैं? What you want to say, कुशाग्र? क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट दिया है? यस सर। हाँ, नहीं AB यार, और ACD। नहीं यार, इट इज सिमिलर ओनली। सर अच्छा, दो ABE चीज दिए हैं, वो शो congruent करना है दिया। AD को। चलो भाई, कॉन्ग्रुएंट मान लेंगे हम तो, ए ये इक्वल है। सर इसकी वजह से AB AC के इक्वल होगा और AD AE के इक्वल होगा। हाँ, इक्वल होगा। CPCT। फिर यस सर। फिर तो सर दो साइड्स और और एक फिर एंगल हो गया ना, तो ऐसे ऐसे इक्वल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। नो बेटा, नो 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 विनीशा, कॉन्ग्रुएंसी इज गिवन, कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है। यस सर। कैसे? मेरे को बता दो जरा, मेरे को बताओ कैसे लिखोगे? यस, मैं आपका जो आप वो ही बोलोगे मैं लिख दूंगा, बोलिए। सर रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल। हैं? सर रेशियो ऑफ साइड इज इक्वल क्योंकि सर AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। क्यों? सर क्योंकि AD अपॉन AB मतलब AB और AC तो इक्वल है, तो उससे रेशियो भी इक्वल आ रहा है क्योंकि AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC क्योंकि दोनों 1/2 है। आप बनाओ तो सही ना उसको, कैसे? यू आर कमिंग टू द आंसर इच्छिता, बट हाँ। आपको थोड़ा सा फर्क आ रहा है, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। आप क्या कहना चाहती हो एक बार क्लियरली बोलो, और सब चुप रहेंगे। इच्छिता विल टेल। ओके बेटा, यस। यस सर। हाँ सर सबसे पहले तो ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। हाँ, यस, ये तो कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो उससे AB और AC इक्वल हो जाएंगे ए बी इक्वल टू ए सी, और AD इक्वल्स टू AC। राइट सर? हाँ। ये हो गया। यस। सर फिर इससे रेशियो भी इक्वल आएगा AD अपॉन किसका रेशियो? किसका रेशियो? सर साइड्स का। कैसे? बोलो। सर AD अपॉन AB। नो नो नो, यू कैन नॉट से लाइक दिस। AB इक्वल टू AC, तो यू कैन से वन थिंग हियर बेटा, AB अपॉन AC इज व्हाट? 1 हो जाएगा। लाइक दैट हाँ। AD अपॉन AE इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज 1. आल्सो 1। एम आई राइट? यस जब भी सर। दोनों और 1 है तो AB अपॉन AC मस्ट बी इक्वल टू AD अपॉन AE। AE। अब इस AD को इधर लिया, AC को उधर लेके जाओ। दिस एम्प्लाइज AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE।
देखो यहां मिला है हमें असली चीज, इसको यहां लेके आया, इसको यहां ले, मैंने पहले इन दो रेशो इक्वल किया, इनको इक्वल किया, फिर मैंने ये रेशो इक्वल। देखो ट्राइंगल कौन सी है, एडीई और एबीसी, तो मैं करूंगा ए बी अपॉन ए डी मस्ट बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, है ना भाई, करस्पॉन्डिंग साइड तो यही होगी ना। यस सर। तो इन दोनों का रेशियो मैंने इक्वल कर दिया ना यहाँ पे प्रूव, यस सर। एंड देन आई कैन से एंगल ए इक्वल टू एंगल ए। यस सर। कॉमन एंगल है, हाँ फिर बाय एस हो गया। then you can say this implies this is similar by SA. ADE similar to triangle ABC by SA. All of you understood or not? Tell me. समझ में आया कि नहीं? विनीशा, Yes, sir. विनीशा, you want to say the same thing or you want to say different one? Sir, थोड़ी थोड़ी सेम ही थी। थोड़ी नहीं थी, बट मतलब हाउ टू राइट मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में ये बहुत जरूरी है कि Yes, आप sir, वही। लिखना चाहते हैं क्या, आपके मन में तो है, आपको मालूम है कि क्वेश्चंस को ऐसे प्रूव करना है, बट कैसे लिखना है ना, ये बहुत जरूरी है। यस सर, वो साइड के बारे में मुझे पता था, बट ना वो लिखना कैसे था वो नहीं पता। हाँ देखो, हमने रेशियो इक्वल किए, दोनों इक्वल है तो 1 होगा, फिर हमने कहा ये दोनों इक्वल है, फिर मैं इसको इधर ले आया, इसके यहाँ पर मैं आया जाके जाके, ये Yes, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आया यहाँ पे जाके, अंडरस्टूड। यस सर, वो एसएस वाला क्राइटेरिया तो मिल गया था। हाँ एसएएस वाला तो फिर आप लिख सकते हैं बाद में। यस सर। All of you understood and noted also? Please note down. This is question number 5. Melvin, are you understood this question? Understood or not, Melvin? Question number 7. Question number 7 is very big one, but you have to do this question. You know, इस एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है। वन क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम, इसलिए मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगेगा, मैं नहीं करा रहा हूँ। आई विल टेक द क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मैं ये 5-6 क्वेश्चन केवल 1 और 2 पीरियड्स आई विल गिव टू दिस एक्सरसाइज। मैं इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली अच्छी तरह कराना चाहता हूं आपको, जो कि हर एक बच्चा एक्सरसाइज को समझे। राइट सर? इसलिए इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को बाद में कराएंगे। सर